তো আমরা আজকে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট মধ্যে একটা ফার্স্টে আমরা দেখে নিচ্ছি কি 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 আমরা টপিক কভার করব। তো একটা হচ্ছে আমাদের পুরো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যে ওয়েবসাইট তৈরি হয় তার মধ্যে আমাদের একটা ওয়েব ডিজাইনিং একটা পার্ট, একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটা পার্ট, ডেটাবেস একটা পার্ট, থার্ড নম্বর যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, হোস্টিং একটা পার্ট কি ভাই কিভাবে আমি প্রজেক্টটাকে ডিপ্লয় করব, মানে ক্লাউডের মধ্যে ফেলবো, নালে আমরা লোকাল কম্পিউটারে তো বানিয়ে নেব, কিন্তু লোকরা কিভাবে দেখবে আমার প্রজেক্ট গুলোকে। সাথে কোম্পানিতে এখন নতুন ইউএক্স ইউআই ডিজাইনিংও, ইউএক্স ইউআই ডিজাইনিংটা কিসের জন্য লাগছে, ধরো আমি একটা প্রজেক্ট তুললাম মার্কেট থেকে, এআইসিটির ওয়েবসাইট এক্সাম্পল। এবার প্রজেক্টটা তো আমরা বানালাম, হোম পেজ, অ্যাবাউট পেজ, কন্ট্যাক্ট পেজ, তিনটে চারটে পেজ আমি বানিয়ে দিলাম। এবার বানানোর পর যখন ক্লায়েন্টকে দিলাম, ও বলল আরে ইয়ার তোমাকে আমি অন্য পার্পল বলেছিলাম, তুমি অন্য পার্পল, তুমি তো ব্লু করে দিয়েছো। মানে কথাটা হচ্ছে এবার থিম কালারে পুরো চেঞ্জ করা কোডিং দিয়ে তো খুবই টাফ হয়। ওকে, তো ইউএল ফিগমা দিয়ে কি হয়, ফিগমা একদম পুরো অটো কোড জেনারেট হয়। তো ফিগমার মধ্যে তোমাকে, তো ফিগমাতে তোমার সবকিছু রিডিজাইন, রেসপন্সিভনেস, সবকিছু কোন পেজ কোন সঙ্গে কানেক্ট হবে সব সব নিজের মধ্যে কানেক্ট থাকবে। এইখানে ক্লিক মারবো এই পেজ খুলবে, এইখানে ক্লিক মারবো তো অটোমেটিক্যালি সবকিছু থাকবে। ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিলাম, যখন ক্লায়েন্ট অ্যাপ্রুভাল করে দিল, তো মোটামুটি $30 না $15 লাগবে, এইচটিএমএল কোড, সিএসএস কোড অটো জেনারেট হয়ে যাবে। ওকে, অটো জেনারেট হয়ে যাবে। তো খাটনিটাও কম, রেসপন্সিভ বানানোর জন্য। তো আজকাল কোম্পানি এরকমই চাইছে যে ভাই আমার ক্লায়েন্ট যেন একবারে প্রজেক্টটা দেখে পছন্দ করলো, যদি পছন্দ করলো তবে আমি ওই ইনভেস্টমেন্টটা করব, নাহলে ফিগমা এমনি ফ্রি অফ কস্ট। ঠিক আছে, আজকাল যতগুলো এইরকম ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ টুল গুলো বেরিয়েছে মার্কেটে, সবারই ডিমান্ড হচ্ছে। ওয়ার্ডপ্রেসও ডিমান্ড আছে, ফিগমার ডিমান্ড আছে, ক্যানভার ডিমান্ড আছে। তো ক্যানভা দিয়ে গ্রাফিক ডিজাইনিং এর জন্য অনেক ভালো সুবিধা। তো ইউএক্স ইউআই ডিজাইনিং এখন ইনক্লুড হয়ে গেছে কোর্সের মধ্যে। ওয়েব ডিজাইনিং এর মধ্যে আমাদের এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, রিয়্যাক্ট, বুটস্ট্র্যাপটাও ইনক্লুডেড আছে এখন। বুটস্ট্র্যাপ কেন কি, আমাদের এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক, বুটস্ট্র্যাপটা আমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্ক। তো আমাদের কোডটা তাড়াতাড়ি, মানে সুবিধা হয়, অনেক তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করতে সুবিধা হয় প্রজেক্ট গুলো। তো যখন এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনসেপ্ট, দেন বুটস্ট্র্যাপ আমরা ইউজ করে ওয়েবসাইটটাকে আরো তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করতে পারবো। আমাদের যে যতগুলো আমি আমি মেনলি প্রজেক্ট গুলো বানাই, ম্যাক্সিমাম আমি বুটস্ট্র্যাপে। এইচটিএমএল, সিএসএস শুরুতে ঠিক আছে, যখন এটাও আমি নিজে নাহলে থিম ডাউনলোড করে নিই, তার মধ্যে ডেভেলপমেন্টের কাজ আমি করব, কিন্তু ডিজাইনিং এর কাজ যেন অটো জেনারেট হয়ে যায়, মানে ডিজাইনিং এর যেন, হ্যাঁ। तो यही सब। तो चलिए हम लोग, वेब डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। वेब डेवलपमेंट में हम लोग नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, डेटाबेस में माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, होस्टिंग में हम लोग बहुत कुछ, स्पेशली क्लाउड होस्टिंग, जिसमें हम लोग सीखेंगे गिट, गिटहब, और क्या सीखेंगे जी, ए डब्ल्यू एस, अमेजन वेब सर्विसेज, और एज्योर। जो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी सिर्फ होस्टिंग कराने के लिए बहुत अलग अलग डेवलपर को हायरिंग करती है, और होस्टिंग करने वाला बंदा भी लगभग 20,000 30,000 चार्ज कर देता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप सीख के रखो। कंपनी में आज वेब डिजाइनर का जॉब चला जाएगा, डेवलपर तो लगेगा, डेवलपर का काम खत्म हो गया, डेटाबेस इंजीनियर चाहिए, उसके बाद क्लाउड इंजीनियर चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सबका जॉब एक साथ जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मार्केट में फ्रीलांसिंग का जॉब वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में ही है, जहाँ पे एपीआई क्रिएट करना, हम लोग एपीआई भी हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। हमारा एपीआई क्रिएट करना, एपीआई इंटीग्रेट करना, एपीआई टेस्टिंग करना, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का अभी का टॉपिक क्या है भाई, हम एचटीएमएल में सीखने वाले क्या हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हमारा जो मेन है अभी, हमारा जो मेन है पढ़ना क्या है, एचटीएमएल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो फुल फॉर्म, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बोला कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, हाइपर का क्या मतलब है, हाइपर का मतलब होता है लिंक करना, लिंक। अब टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं, इमेज को लिंक कर सकते हैं, वीडियो को लिंक कर सकते हैं, ऑडियो लिंक, दो वेब पेजेस लिंक,
दो वेब पेजेस लिंक, दो वेबसाइट लिंक, मतलब इसका क्या मतलब है? हम लोग पूरे एचटीएमएल में हम लोग लिंकिंग करना सीखेंगे। जैसे आप जानते हो कि कोई भी वेबसाइट चाहे कोई भी हो, ठीक है, अभी जैसे अगर मैं आप ही लोगों के आइकन पे थोड़ा क्लिक मारता हूँ सूर्यकांत के, देखते हैं भाई, पिन करो, देखते हैं पिन, ठीक है, देखिए ये बड़ा हो गया, फटाक से कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर से छोटा हो गया। मैंने कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कैसे हम एक बटन पे लिंक बना लिए वेबसाइट में। होम के बाद अबाउट पे क्लिक मारेंगे तो अबाउट अस का पेज, कोर्स पे क्लिक मारेंगे तो कोर्सेज का पेज, ठीक है ना, कौन कौन सा कोर्सेज होते हैं, ये वेब पेजेस हुआ। वेबसाइट जैसे फेसबुक हमारा वेबसाइट हमारा पेज नहीं है, तो फेसबुक पे जैसे क्लिक मारेंगे, यूट्यूब पे जैसे क्लिक मारेंगे तो यूट्यूब खुलेगा, व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक मारेंगे लिंक्डइन, तो जैसे फेसबुक पे क्लिक मारेंगे तो फेसबुक खुल जाएगा। तो इसका मतलब है दो वेबसाइट को भी हम लिंक कर सकते हैं। वीडियो आप यहीं पे देख लो, वॉच आवर डेमो क्लास, जैसे क्लिक मारेंगे तो एगो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मॉर्निका, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास का वीडियो आपका आ जाएगा, बस हो गया। और आपको अबाउट अस का वीडियो भाई क्लिक मारो, देखो वीडियो लिंकिंग करना सीख जाएंगे कि हमारा एआईसीटी क्या 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 करता है, क्या अलग है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। बोला मार्कअप क्या है, मार्कअप क्या है, ये मार्कअप क्या है? मार्कअप का मतलब होता है जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब जिसमें कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता। तो जो लैंग्वेज नॉट केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, वो सारा का सारा मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, जिसमें इस अकेला लेस देन का साइन है, अकेला ग्रेटर देन का साइन है, जब दोनों एक साथ यूज होता है तो बहुत लोग इसको एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बहुत जन इसको मार्कअप टैग भी बोलते हैं, मार्कअप टैग भी बोलते हैं। तो ये चीज है कि पूरे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो हम लोगों को पूरे HTML में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग? वेबसाइट कैसे उसका लेआउट डिजाइन करते हैं, हम लोग को पूरे HTML में लेआउट डिजाइनिंग, जिसमें मल्टीपल पेज कैसे बनाएंगे, मल्टीपल पेज कैसे बनाएंगे, उस मल्टीपल पेज, ऑल टाइप्स ऑफ टैग, हर टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेबल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेबल, ये सब चीजें कैसे, उसके बाद यूट्यूब का वीडियो कैसे इंटीग्रेट करना, यूट्यूब से वीडियो इंटीग्रेट करने से क्या फायदा होता है, गूगल मैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं वेबसाइट में। तो ये सब चीजें हम लोग HTML में सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारा शुरू होगा CSS। CSS फुल फॉर्म क्या है भाई? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, शीट, देखिए इसका क्या मतलब है, कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है? कैस्केडिंग का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद कैस्केड का मतलब क्या होता है। देखिए अगर किसी भी सिस्टम का आउटपुट अगर दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाए, किसी सिस्टम का आउटपुट अगर दूसरे सिस्टम का इनपुट बन जाए, तो इस चीज को हम लोग कैस्केड फॉर्म बोलते हैं। इस चीज को, एक सिस्टम का आउटपुट अगर दूसरे सिस्टम का, इसको हम लोग टेक्निकली भाषा में सीरीज भी बोल सकते हैं, सीरीज फॉर्म, इसको हम लोग सीरीज भी बोल सकते हैं, ओके। और इसको कैस्केड भी बोलते हैं। मैंने कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक HTML का पेज रेडी है और हमको अगर CSS का हम कोड में HTML का पेज को खींच के अगर रख दें, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो एक कस्टम पेज बनेगा, कस्टम डिजाइन। ये हमारा वेबसाइट ही देखिए, एकदम सिंपल देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे सुंदर दिख रहा, लेकिन ये फोटो यहीं पे दिख रहा, ये एनिमेशन पीछे एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। ये जब रिफ्रेश मार रहे हैं तो ये टेक्स्ट इधर से आ रहा है लेफ्ट साइड से, ये भी आप देखो, हर चीज को आप खाली गौर करना है। तो ये सब अफेक्ट के कारण सुंदर लग रहा। कोर्सेस पे कैटेगरी पे हम जब हाथ लेकर आए तो कलर चेंज हो रहा। तो ये सारा का सारा काम CSS का है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। लेकिन ध्यान रहे ये भी कि ये बिना HTML का कोई काम का नहीं है। तो जब तक आपके पास HTML का कोड रेडी नहीं रहेगा,
आपका सीएसएस का कोई दाम नहीं है। सीएसएस तभी काम करेगा जब आपका एचटीएमएल का कोड रेडी है, तो जो आउटपुट आएगा वो एक कस्टम डिजाइन बन के आएगा। तो हमारा इसमें हम लोगों को टोटली क्या सीखना है, इसमें हम लोगों को सीखना है सीएसएस में सब कुछ कस्टम। तो कस्टम लेआउट, कस्टम लेआउट बोला ओके, कस्टम लेआउट बोला ओके, उसके बाद कस्टम कस्टम मेनू दिखाते हैं क्या बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन कस्टम लेयर, कस्टम लेयर एनिमेशन बोला कि साथ में रिस्पॉन्सिव डिजाइन। बोला कि रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिव का मतलब है यही, जब डिजाइन को अगर मैं मोबाइल में देखूं तो ये मोबाइल का डिजाइन कितना प्यारा लग रहा, आप देखते जाओ। तो ये तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ बगल में, अब देखो मोबाइल में कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे कोर्सेज 5 दिख रहा था अभी 3 दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 3 दिखेगा तभी अच्छा लगेगा, फिर 5 दिखेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा दिखने लगेगा। तो ये कितना खूबसूरत है, मेनू सब चेंज होके लेफ्ट साइड मेनू में आ गया, कितना प्यारा ये भी लग रहा है। होम तो होम, अबाउट तो अबाउट, तो अबाउट में क्लिक मारेंगे तो अबाउट में जाएगा भी साथ में। भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो आप देख लो, मेरा कहने का मतलब बस यही था कि आपके पास आपके पास पूरा डिजाइन है, मोबाइल डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। मतलब कि ओके, ये लेयर क्या है, लेयर क्या होता है? लेयर के पास अब देखो, पहले लेयर के लिए मैं दूसरे वेबसाइट का एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट से समझाएं? जी हाँ, फ्लिपकार्ट से समझाते हैं। अब देखो, इस किलोज में कोई मेनू नहीं है, मोबाइल में भी नहीं है, लेकिन फैशन में है। जब मैं फैशन पे हाथ रख रहा हूं, ओपन हो रहा है कुछ जिसमें मेंस टॉप वियर में ये सब आ रहा, मेंस बॉटम, ये वगैरह 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 वगैरह। सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, हर एक मेनू के अंदर एक और मेनू, सब मेनू, तो मेनू के अंदर सब मेनू, सब मेनू के अंदर चाइल्ड मेनू। तो ऐसे करके आप जितना मर्जी उतना बना सकते हैं। ये सब चीजें किससे सीखेंगे हम लोग? सब सीएसएस से सीखेंगे। ओके, कस्टम लेयर क्या होता है? ये देखिए, बैनर नीचे में चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर में ये दिख रहा है, प्लस ये रेडियो बटन भी ऊपर में दिख रहा है, कोई भी वेबसाइट में। हमारा भी वेबसाइट में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बैनर पीछे है, ये सब कुछ मूव जो हो रहा है सब ऊपर में, बटन ऊपर में है। तो ये लेयर कैसे चेंज करते हैं, ये टोटल इंस्ट्रक्टर का जो बॉक्स है ये भी ऊपर में है। तो लेयरिंग कैसे करते हैं, इसमें एनिमेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। माने नौकरी अगर आपको लेना है तो एचटीएमएल बहुत अच्छा नहीं रहना चाहिए, लेकिन सीएसएस बहुत अच्छे से सीखिएगा। एचटीएमएल तो ठीक ठाक भी रहेगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, एचटीएमएल टफ भी नहीं लगता। जो थोड़ा मोड़ा टफ लगेगा हल्का फुल्का वो है सीएसएस, क्योंकि नौकरी आपको सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस बहुत जन नौकरी पा लेते हैं, इतना उतना मेहनत भी नहीं है। नौकरी पाना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर जो चीज सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखे तो। थर्ड नंबर है हमारा, वो है जावा स्क्रिप्ट, जो कि हमारा यहीं से तो मेन कोडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जावा तो समझ में आ रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है, सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है, जिसमें विंडोज बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, विंडोज बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है क्या क्या आता है जी? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब सब विंडोज बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है। ठीक है, वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है? वेबसाइट बनाने के लिए वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, पीएचपी, डॉट नेट, डॉट नेट मतलब सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एडवांस जावा, जेएसपी। ठीक है, पाइथन हर जगह काम आता है। ठीक है, नोड जेएस, सब सब। ठीक है, रिएक्ट जेएस, ओके, ठीक है, रिएक्ट जेएस, जे क्वेरी, वो सब ठीक है, वो सब नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मतलब कि वेबसाइट, एंड्रॉयड बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या आता है? ऐप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, ऐप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है जी?
XML और क्या लगता है, XML एंड जावा, पाइथन, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉटलिन है। इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं। हम लोगों को कौन सा वाला चाहिए, हम लोगों को वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है, जिसमें हमारा वेब बेस्ड भी दो टाइप का है। एक है क्लाइंट साइड, अभी तो सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं ना, अभी तो याद भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और एक है सर्वर साइड, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कोई भी अगर वेब पेज अगर एक बार लोड ले लिया, उसका मैं सोर्स कोड सब कुछ देख सकता हूँ, यहाँ तक कि उसका CSS का भी कोड देख सकता हूँ, उसका जावास्क्रिप्ट का भी कोड देख सकता हूँ, इसमें तो सब CSS ही है। कोई भी वेबसाइट चाहे कितना भी बड़ा अच्छा डेवलपर क्यों ने बनाया हो, ठीक है, तो उसका सोर्स कोड तो फटाफट मिल जाता है। ठीक है, उसका सोर्स कोड तो पूरा फटाफट मिल जाता है। लीजिए, जावास्क्रिप्ट का भी कोड सब मिल जाता है, लेकिन बैकएंड का कोड नहीं मिलता है। तो ये सब एक बार अगर वेब पेज लोड ले लिया, तो आप क्लाइंट साइड का कोड देख सकते हो, सर्वर साइड का कोड नहीं देख सकते। वो कब काम आता है, जब आप कोई लॉगिन कर रहे हो, डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो, पासवर्ड उसवर्ड दे के, जब लॉग आउट मार रहे हो, प्रोफाइल का एडिट उडिट करना, तो ये सब चीजें हैं। तो हमारे पास सिंपल, हम लोगों को डिजाइनिंग सीखना है। तो इस जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखेंगे क्या, मेन क्वेश्चन है, क्या सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे वो है क्या चीज, कि इसमें हम लोग कुछ भी छोटा सा कैलकुलेटर बनाना, सबसे पहले कैलकुलेटर बनाना। ठीक है, कैसा कैलकुलेटर मैं बता दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग इमेज स्लाइडर, इमेज को कैसे स्लाइड करना है, फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, बोला ये सब क्या है, दिखाते हैं। चलिए, मान लीजिए मैं बिना भरे जैसे मैं सबमिट करने का कोशिश करूंगा, तो क्या दिखा रहा प्यारा सा, कि भैया ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल में ए लिख दिए और सबमिट मारने का कोशिश कर दिए, तो क्या दिखा रहा, वैलिड ईमेल आईडी नहीं है। ये तो ईमेल आईडी वैलिड नहीं है। मान लीजिए पासवर्ड भी एक डिजिट डाल दिया, तो ईमेल आईडी तो नॉट वैलिड, लेकिन पासवर्ड वैलिड हो गया। चलिए, मैं ईमेल आईडी में a@a.a और पासवर्ड में भी 1, क्या काम करेगा, इनवैलिड ईमेल। ठीक है ना, तो मैंने अभी भी देखिए ये सब सब चेक कर रहा। तो वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन, कैसे फॉर्म को, ठीक है। इमेज स्लाइडर, भैया इमेज स्लाइडर हमारा जावास्क्रिप्ट, फ्लिपकार्ट सबसे बेस्ट है, फ्लिपकार्ट में अच्छे से समझना भी अच्छा अच्छा लगता है। वो है कि जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूं, तो वो फोटो चेंज हो, प्रीवियस प्रीवियस करूं तो भी फोटो चेंज हो, रेडियो बटन पे भी क्लिक मारूं तो फोटो चेंज हो, मतलब ये कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, बोला कैलकुलेटर क्या होता है। कैलकुलेटर देखिए, आजकल के वेबसाइट में स्पेशली कोई भी ईआरपी, ईआरपी, हाँ ईआरपी देखते हैं, ईआरपी डॉट, ईआरपी से नहीं अच्छा है, केकशॉप.com देखते हैं खुलता है कि नहीं। मान लीजिए मैं एक एक ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी शॉप का, दुकान का वेबसाइट बनाया या सॉफ्टवेयर बनाया, और मुझे कोई भी बिलिंग बिलिंग करना है, तो भाई सेल्स में जाएंगे, सेल्स में। अब दिक्कत क्या है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए, वो तो मैं क्लिक मार के ऐड कर लिया, लेकिन मुझे वो कितना उसका बिल होता है, उसका 110 रुपया, लेकिन वो 102 150 रुपया दिया, तो मुझे 40 रुपया रिटर्न करना है। तो भाई कैलकुलेटर है यहाँ पे, कि मुझे मेरा 140 150 रुपया वो मुझे दिया था, मेरा होता है 110 रुपया, तो रिटर्न कितना करना है, 40 रुपये। ये जो कितना प्यारा लग रहा, ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ता है। तो वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके साथ साथ हमारा ऑन क्लिक इवेंट सारा, ऑन माउस ओवर सारा, माउस ओवर, ऑन फोकस, ऑन फोकस आउट, ऑन ऑन फोकस, ऑन फोकस आउट, बोला ये सब क्या है। प्लस और क्या हमको सीखना है, वो है, और भी सीखना है हम लोग को, फिल्टर स्पेशली। मतलब फिल्टर क्या होता है भाई, आप चलो मेरे वेबसाइट में ही चलते हैं फिर से वापस, एआईसीटी में। मुझे मान लीजिए मैंने सारे कोर्सेज पे क्लिक मार दिया,
अब मुझे इतने सारे कोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे सिर्फ इंग्लिश वाले कोर्सेस चाहिए, तो सिर्फ इंग्लिश वाला, सिर्फ हिंदी वाला कोर्स चाहिए, सिर्फ हिंदी वाला कोर्स, तो जो जो हिंदी में चार ही वो कोर्स है हिंदी में, ठीक है। बोला कि हमको सिर्फ डेवलपमेंट वाले कोर्स चाहिए, तो उसमें सिर्फ 3 गो कोर्स मिला। अच्छा, जिसमें सिर्फ हमको गेम डेवलपमेंट वाले कोर्स चाहिए, बोला कि कोई नहीं है, हिंदी में कोई भी गेम डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, सिर्फ डेवलपमेंट का, सिर्फ डेटा साइंस का, सॉरी, हाँ डेटा साइंस का 2 गो कोर्स है, पाइथन मशीन लर्निंग और पाइथन, सॉरी मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन मेगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फिल्टर इसको बोलते हैं, फिल्टर, ठीक है। प्लस हमारा जीमेल उमेल भी जब आप लोग खोलते हो तो आप लोग जानते हो कि जीमेल में क्या होता है। जीमेल में सबसे पहले आपको खुलता है प्राइमरी, उसके बाद प्रमोशनल, उसके बाद सोशल। देखिए, मेरा वेबसाइट का यूआरएल बिना चेंज हुए डेटा चेंज हो जाता है, डेटा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। प्लस यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे नहीं, सेटिंग में जाके हमारे पास कितना अच्छा अच्छा ऑप्शन है, सब लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हमको बैकग्राउंड का थीम पसंद नहीं आ रहा, क्लिक मारते हैं थीम चेंज, क्लिक मारते हैं थीम चेंज। तो ये सब जो चीज है सब जावास्क्रिप्ट का, कैसे हम लोग ऑन क्लिक पे कोडिंग करते हैं, ठीक है, चैटिंग वैटिंग करना, तो ये सब चीजें हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखने वाले हैं। तो ये सब इस मैंने उसके से भी, सीएसएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप तो मेरा फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप मेरा क्या है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, ताकि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, रेडीमिक्स, मैंने बहुत कुछ आपको रेडीमेड मिल जाएगा, स्पेशली क्या क्या, स्लाइडर, मतलब आपको ऑनलाइन हिंदुस्तान एकेडमी पूरा बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है। इसको बनाने में आपको हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन बूटस्ट्रैप जब किसी का क्लियर हो जाएगा तो सुंदर सुंदर एकदम डिजाइन बन जाएगा, और जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे करेंगे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके, रिएक्ट जेएस में भी, और भी सुंदर सुंदर कैसे हम लोग वेबसाइट का, वेब पेज का लोडिंग टाइम को कैसे रिड्यूस करते हैं, लोडिंग टाइम को कैसे रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्योंकि आप देखो, नॉर्मली पीएचपी ओएचपी का जो पेज होता है, वो हर बार जब मैं एक ही पेज में अभी भी हूं, फिर भी रिफ्रेश करने से स्लो। और रिएक्ट का पेज ऐसा नहीं होता है, रिएक्ट का पेज आपका एक बार लोड ले लिया, ये बार बार हम होम ही पेज को इतना लोड जो टाइम लग रहा, ऐसा नहीं है। तो फेसबुक उसबुक का पेज आप जब देखोगे कि एक बार लोड होने में जितना टाइम लगेगा, उसके बाद से आपका टाइम नहीं लगेगा। फ्लिपकार्ट ये सब सब अब देखो कितना स्पीड में टानता है, ठीक है, फिर भी तो लोड ले रहा है कम से कम रिफ्रेश मारने के लिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिएक्ट में आपको ये सब चीज सिखाया जाता है, वेबसाइट का कैसे लोडिंग टाइम रिड्यूस किया जाता है। फिर तो अपना नोड जेएस सब सब तो अब पढ़ना ही है, नोड जेएस हुआ, एक्सप्रेस जेएस हुआ, सब का सब। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, एचटीएमएल से सबसे पहले, जिनको आता है तो भी, एचटीएमएल आने से भी आपको पढ़ना है फिर भी, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, तो बढ़िया है। अब आता है कि भाई हम एचटीएमएल में क्या तो एचटीएमएल तो बाद में आता है, एचटीएमएल भी आज के क्लास में हमको एचटीएमएल नहीं शुरू करना है भाई। एचटीएमएल हो या कुछ भी हो, पहले तो मेरे दिमाग में यही आएगा भाई, कौन से सॉफ्टवेयर पे मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूंगा, सॉफ्टवेयर कौन सा रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर कौन सा रिक्वायरमेंट है। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए हमको कौन सा भाई, तो हम लोग आइदर नोटपैड अच्छा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है तो हटा दे, ब्लैक एंड व्हाइट है, बेकार, तो हम लोग नहीं यूज करेंगे। मिनिमम नोटपैड प्लस प्लस, या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, या फिर वीएस कोड एडिटर। तो सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा है भाई, वीएस कोड। कौन सा, वीएस कोड। वीएस कोड में आपको आजकल का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस, एक जो अभी नोटपैड प्लस प्लस है, देखिए कम से कम कुछ अच्छा है, कम से कम कलरफुल है, हल्का फुल्का, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी अच्छा है, वीएस कोड सबसे अच्छा है, क्योंकि वीएस कोड पे अभी पूरा दुनिया काम कर रही है। ओपन सोर्स वीएस कोड में आपको पूरा दुनिया काम कर रही है।
आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे ये अभी जस्ट आपके आगे कोर्स चल रहा, अगर हम लोग 2-3 दिन 4 दिन करके क्लास लेंगे तो थोड़ा सा इस बैच में आराम से मर्ज हो सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है, फाइल में जाके एक बार ओपन फोल्डर, भाई फोल्डर में डेस्कटॉप में जाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। क्या नाम से बनाएंगे, फुल स्टैक 40 नाम से फोल्डर बना लिए, और उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसमें करना क्या है भाई, इसमें करना है मुझे यहाँ पे जाना है, एक्सटेंशन में जाना है, HTML का बॉयलर प्लेट। अब क्या होता है पढ़ाएंगे अलग से, बॉयलर प्लेट को थोड़ा डाउनलोड कर लेना है, एक काम करना है, क्या होता है वो तो मैं पढ़ाऊंगा। और एक और चीज चाहिए, वो है लाइव सर्वर को आपको, लाइव सर्वर को भी आपको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है नेट ऑन करके। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, प्री टीयर भी है, प्री टीयर को भी थोड़ा डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे थोड़ा कोडिंग आपका सुंदर दिखेगा। ओके, लास्ट और कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये 3 चीज चाहिए जिससे आपका कोडिंग थोड़ा अच्छा भी लगेगा, करने में भी अच्छा लगेगा। पहला फाइल हम लोग चलिए, फर्स्ट .html, जहां पे हम लोग को कोडिंग लिखना है। कोडिंग अगर हमको नहीं आता, HTML नहीं आता, तो हम लोग कोडिंग कैसे लिखेंगे। कोडिंग लिखने के लिए अगर कोड नहीं आता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सी का कोडिंग अगर हल्का फुल्का भी आता, कुछ भी आता है, एगो प्रोग्रामिंग तो आता होगा कोई ना कोई, नहीं आता तो अलग बात है। तो हम लोग जैसे सी, अगर कोई लोग सी पढ़ा होगा तो उसमें क्या सिखाया जाता है बच्चों को, कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वर्ड मेन से। हमेशा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वर्ड मेन से, और कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस ऑफ। इस कर्ली ब्रेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कोप, स्कोप ऑफ द मेन फंक्शन, स्कोप। बोला ओके, इसके ऊपर अगर कुछ भी कोड लिखते हो तो भी कोड वहां से स्टार्ट नहीं लेता। कोड कहाँ से स्टार्ट लेता है, हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट लेता है। तो ऊपर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड मेरा ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारा HTML भी है, जो तो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप HTML कैसे भी लिख सकते हो। कैसे, HTML कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। HTML खत्म, तो HTML शुरू, HTML खत्म, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट कि इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कोप ऑफ द HTML। ये फ्रंट स्लैश बैक स्लैश से काम चलेगा, बोले ना। तो इसमें HTML से शुरू, HTML से ही खत्म, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोगों के पास भी सेम HTML से स्टार्ट होगा, HTML से खत्म, HTML से खत्म, बहुत ही इजी है। मतलब इसमें एक और अच्छा चीज क्या है कि भाई कोडिंग हमको बस समझ में आना चाहिए। इसके बाद हमारा जो HTML है, बिल्कुल इंसान की तरह सोच के बनाया गया है। इंसान, इंसान के पास बिल्कुल इंसान के पास जैसे हमारा एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। अगर देखा जाए तो सारा चीज बॉडी पार्ट में ही है, सारा कुछ, सारा कुछ बॉडी पार्ट में ही है। लेकिन सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल कौन करता है, हेड पार्ट। सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल कौन करता है, तो हेड पार्ट। तो हमारा बिल्कुल HTML में भी सेम ही है, HTML में भी, कि हमारा एक हेड पार्ट है, हेड पार्ट, हेड पार्ट, ये सब अभी हटा दीजिए, हेड पार्ट, ओके। और एक है हमारे पास बॉडी पार्ट। तो इंसान का एकदम बिल्कुल सोच के ही बनाया गया है। इसको थोड़ा सा टैब मार के अंदर घसका दीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि ये HTML के अंदर का पार्ट है। ये समझ में आता है कि HTML के अंदर का पार्ट है। ये हेड है। हेड को जब तक आप जानते हो, इंसान का जब हेड खत्म होता है तब से बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है। बीच में नेक जो है, गर्दन जो है, हमारा जॉइंट का काम करता है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारा HTML भी, बस ये बॉडी पार्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास जो भी काम करना है आपको, बॉडी पार्ट में ही करना है। कुछ भी लिखना है, हाय लिखना है, सॉरी, इंटर, हेलो लिखना है, कुछ भी लिखना है, कहाँ लिखना है, बॉडी पार्ट। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा, हेड पार्ट।
अच्छा ठीक है, तो पहले रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के लिए आपको गो लाइव, यहाँ पे जो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया, क्लिक मारिए। गो लाइव बहुत ही आसान है गो लाइव से। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, बगल में जो वेबसाइट खुला हुआ है उसमें एक आइकन है, कुछ लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर ग्रोसरी, और हमारा में क्या दिख रहा, कुछ अलग चीज। तो आइकन और ये इसको बोलते हैं टाइटल, दोनों मिसिंग है। ये पार्ट किसका है, हेड पार्ट का। तो सबसे पहले हमको हेड पार्ट के अंदर वेबसाइट में टाइटल लिखना जरूरी है। टाइटल में क्या लिखाएगा जी, वेलकम टू HTML फर्स्ट क्लास। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हमारा वेबसाइट, बोला जैसे मैं करूंगा, देखिए ये वेलकम टू HTML फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम तो कुछ भी लिख सकते थे, जरूरी थोड़ी ना कि यही लिखें। हम तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी लिख सकते थे। सेकंड है मेरा आइकन। आइकन क्या होता है, फोटो होता है। आइकन मेरा फोटो होता है। तो हम लोग फोटो कैसे डालेंगे, मेरे लैपटॉप में फोटो कहाँ से आएगा। चलो मेरे लैपटॉप में देखते हैं फोटो है कि नहीं। तो मेरे लैपटॉप में पिक्चर में देखते हैं। जी हाँ, फोटो तो है, AICT का फोटो। तो कोई भी फोटो को कॉपी करके अपने अपने वेबसाइट में, अपने फोल्डर में लेके चले आइए। अपने फोल्डर में लेके चले आइए। तो राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और उसके अंदर जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नाम क्या दे दीजिए, नाम आसान वाला नाम दे दीजिए, logo.png। और यहाँ पे logo.png आ चुका है। अब हमको सिर्फ उसको आइकन पोजीशन पे बैठाना है। तो ठीक है, तो लिंक बोल के एक टैग है। लिंक क्यों, क्योंकि ये एक HTML फाइल के संग उस इमेज को लिंक करना है, लिंक। ठीक है, HREF, हाइपर, हाइपर माने लिंक, और रेफरेंस, लिंक का रेफरेंस एड्रेस। तो फाइल का नाम क्या है जी, logo.png। ओके, logo.png। बोला और कुछ करना है, बोला कि ना, इतना ही सिर्फ पहले रखिए। तो क्या आइकन आएगा, क्वेश्चन है। क्या आइकन आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो फाइल को लिंक तो कर दिया, लेकिन बैठाना कहाँ है वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो उसके लिए रिलेशन, रिलेशन REL, रिलेशन आइकन जैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक आइकन आ चुका है, दिख रहा क्या ऑनलाइन। हाँ सर, दिख गया। तो मतलब वेबसाइट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, हम लोग देखिए ये सब सब आइकन का ही कमाल है भाई। आज लोग वेबसाइट पहचान ही आता है आइकन से। तो वेबसाइट में हेड, हेड के अंदर कैसे हम टाइटल देते हैं, कैसे हम आइकन लिखते हैं, उसके बाद जो बॉडी पार्ट में करेंगे, ये जो रेडी कोड है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट। मतलब कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। मतलब बॉयलर प्लेट का मतलब क्या है, थाली। ठीक है, तो बॉयलर प्लेट में हम लोग क्या, सजा हुआ थाली। तो जब भी मैं नेक्स्ट आपको, जब मैं अलग से जब फिर से बनाने जाऊंगा, तो आपको क्या लगता है पूरा हम फिर से लिखेंगे। नहीं जी, शिफ्ट दबा के एक्सक्लामेशन का साइन देने से हिंट्स आता है, मेरे में नहीं आता, अलग बात है। तो हम लोग सिर्फ HTML बॉयलर लिखते ही वो सब कुछ आ जाता है, जिसमें हमारा काम का चीज को रख देंगे, बाद बाकी को उड़ा देंगे। तो बाद बाकी को उड़ा देंगे, नहीं चाहिए मुझे, बॉडी पार्ट नहीं चाहिए, इतना आसान हो गया। ठीक है, जिसमें हमारा आइकन, तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहला स्टेप है टाइटल, दूसरा स्टेप है आइकन, दूसरा स्टेप है आइकन, HREF। हाँ, तो दूसरा स्टेप है आइकन, तीसरा स्टेप है UTF-8 वाला कैर सेट। बोला इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, UTF-8 क्या होता है, पहले के जमाना का वेबसाइट जो होता है सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन आजकल के वेबसाइट, तो पहले ASCII कोड सपोर्ट करता था वेबसाइट में। ठीक है, आज का वेबसाइट में UTF-8 सपोर्ट करता है। बोला इससे क्या होता है, बंगला, उर्दू, हिंदी सब सपोर्ट करता है। तो मैंने मान लीजिए मुझे बंगाली में वेबसाइट चाहिए, तो भाई देखते हैं, इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू बंगला अगर मुझे कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हैप्पी बर्थडे, कुछ भी हम, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। और ये क्यों, क्योंकि ये कैरसेट लिखा हुआ है,
तो इसमें हिंदी बांग्ला सब सपोर्ट करेगा। और हमारा वेबसाइट में भी देखते हैं भाई। ओह सॉरी, ये तो फर्स्ट वाला खुला है, सेकंड वाला हमको खोलना है। सेकंड डॉट एच टी एम एल। देखिए कितना अच्छा है, प्लस यहाँ पे ट्रांसलेटर भी दे रहा है। नहीं, ये खुद से आया, मेरे कुछ नहीं है मेरा, मैंने तो सिर्फ बंगला में लिखा है। ठीक है। और इसका क्या काम है भाई, व्यू पोर्ट का काम, ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, मैंने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाओ। इनिशियल स्केल 1, मतलब बाय डिफॉल्ट 100% जूम रहना, अगर कोई जूम करता है तो जूम होना, मतलब नहीं तो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, ऑलवेज 100% बाय डिफॉल्ट जूम रहेगा। तो ये सबको, इस पूरे कोड को हम लोग बोलते हैं बॉयलर प्लेट। अच्छा, ऊपर में HTML5 का सिंटेक्स, ताकि बहुत सारे टैग सपोर्ट करेंगे। तो इस पूरे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है, अ कॉमन कोड। बॉयलर प्लेट का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। बॉयलर प्लेट इन एच टी एम एल का क्या मतलब होता है, a template that includes common HTML element and it is used to starting point for new project। बोला कि उसमें हम लोग को डॉक टाइप HTML, हेड, बॉडी HTML जो जो चाहिए। तो नॉर्मली क्या क्या रहता है, UTF-8, व्यू पोर्ट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर, टाइटल, ये सब कोड रहता है। तो नॉर्मली हमारा बॉयलर प्लेट जो प्री रिटन कोड होता है, ठीक है। तो जो प्री रिटन कोड होता है HTML बॉयलर प्लेट, जिसमें हम लोग मेटा कैरसेट भी आता है, इनिशियल स्केल जूम वाला भी आता है। तो पूरा कोड ही हमको इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। तो आज के क्लास में हम लोग इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।